پہلے آپ کو بتائیں کہ جناح ہسپتال کی زیر تربیت پوسٹ گریجویٹ لیڈی ڈاکٹر کی پراسرار موت۔ ڈاکٹر عروشہ نورین ڈاکٹرز ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ ڈاکٹر عروشہ نورین گائنی یونٹ 2 کی پی جی آر تھیں۔ ڈاکٹر عروشہ نورین کی ڈیڈ باڈی جناح ہسپتال کے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی گئی ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جناح ہسپتال کی زیر تربیت پوسٹ گریجویٹ لیڈی ڈاکٹر کی پراسرار ہلاکت۔ ڈاکٹر عروشہ نورین ڈاکٹرز ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئیں۔ ڈاکٹر عروشہ نورین گائنی یونٹ 2 کی پی جی آر تھیں۔ ڈاکٹر عروشہ نورین کی ڈیڈ باڈی جناح ہسپتال کے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی گئی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کر رہے ہیں۔ جناح ہسپتال کی زیر تربیت پوسٹ گریجویٹ لیڈی ڈاکٹر کی پراسرار موت کے حوالے سے ڈاکٹر عروشہ نورین ڈاکٹرز ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئیں۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جناح ہسپتال کی زیر تربیت پوسٹ گریجویٹ لیڈی ڈاکٹر کی پراسرار موت واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عروشہ نورین ڈاکٹرز ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ ڈاکٹر عروشہ نورین گائنی یونٹ 2 کی پی جی آر تھی۔ ڈاکٹر عروشہ نورین کی ڈیڈ باڈی جناح ہسپتال کے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی گئی ہے، اور جس کے بعد مزید کارروائی آگے بڑھائی جائے گی اور موت کی وجوہات جاننے کی کوشش بھی کی جائیں گی۔ ابھی آپ کو افسوسناک خبر سے اپڈیٹ کرنے ہیں، جہاں پر ایک ڈاکٹر کی پراسرار ہلاکت کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ان کی مردہ حالت میں ان کو ہسپتال میں پایا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ جناح ہسپتال کی زیر تربیت پوسٹ گریجویٹ لیڈی ڈاکٹر کی پراسرار موت ہے۔ ڈاکٹر عروشہ نورین ڈاکٹرز ہاسٹل کے کمرے میں مردہ پائی گئیں۔ آگے بڑھیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایس پی صدر کی کھلی کچہری میں قبضہ گروپوں کے خلاف موصول ہونے والی درخواستیں سنی جا رہی ہیں۔ ملک سیف الملوک کھوکھر گزشتہ 3.5 گھنٹے سے کچہری میں موجود ہیں۔ زیادہ تر سائلین کی جانب سے الزام ہے کہ کھوکھر برادران قبضہ گروپ کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں۔ ایس پی کے دفتر کے باہر خواتین سے نثار کھوکھر کے قریبی ساتھی کے ساتھ ہاتھا پائی بھی واقع ہوئی، جبکہ کاغذات چھین کر پھاڑ دیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایس پی صدر کی کھلی کچہری میں قبضہ گروپوں کے خلاف موصول ہونے والی درخواستیں سنی جا رہی ہیں، اور ملک سیف الملوک کھوکھر گزشتہ 3.5 گھنٹے سے کچہری میں موجود ہیں۔ زیادہ تر سائلین کی جانب سے الزام ہے کہ کھوکھر برادران قبضہ گروپ کی پشت پناہی کرتے رہے ہیں۔ ایس پی کے دفتر کے باہر خواتین سے نثار کھوکھر کے قریبی ساتھی کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی، جبکہ کاغذات چھین کر بھی پھاڑ دیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی ساہی سے، جو کہ اس وقت وہیں پر موجود ہیں۔ علی ساہی، بتائیے گا اس وقت بھی درخواستیں سننے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر کاغذات چھین کر پھاڑ دیے گئے ہیں؟ ایس پی صدر سید علی کی جانب سے ابھی بھی جو آج درخواستیں موصول ہوئیں 42 کے قریب، ان پر سنوائی جاری ہے، جس میں اس میں جو اہم ترین بات یہ ہے کہ یہاں پر ملک سیف الملوک کھوکھر بھی موجود ہیں، جن کے سامنے تمام جو سائلین ہیں ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ترین بات ہے، ایک اپلیکیشن آئی ہے جس میں چیڈو پینٹ کا بتایا جا رہا ہے۔ محمد علی نامی شخص ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے 14 سال قبل ایک زمین ان کو بیچی تھی، جس کا صرف 50,000 روپے ادا کیے گئے، جبکہ باقی جو رقم ہے وہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی، اور اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے ملک شفیع کھوکھر کی جانب سے، جبکہ ایک پروفیسر لیاقت کی جانب سے اپلیکیشن موصول ہوئی ہے، جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان کے کزن ملک جہانگیر کھوکھر نے اس کی 22 کنال اراضی پر قبضہ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ساہی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ ہسپتالوں کے سامنے رش، پیدل آنے جانے والوں کے لیے مشکلات۔ سی ٹی او لاہور کی پیدل چلنے والوں کے لیے پل بنانے کی تجویز۔ جناح سروسز ہسپتال اور پی آئی سی کے سامنے پل بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔
शहर में मुतादिद अस्पतालों के सामने लेबॉर्ट्रियां और मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, जहां पर शहरी टेस्टों और अद्वियात की खरीदारी के लिए 24 घंटे आते जाते हैं, जिसकी वजह से हादसात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर पैदल चलने वालों को सड़क अबूर करने के लिए पुल मौजूद होना चाहिए। ट्रैफिक चूंकि तेज रफ्तारी से आती है तो पुल न होने के बायस रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। हम लोग तो गुजर जाते हैं, जो बिल्कुल बूढ़े और ज़ईफ़ लोग हैं बहुत बड़े मुश्किल से गुजरते हैं। इधर किसी मरीज के साथ आया हूँ, पिछले दिनों मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ, हमारा हादसा हुआ है इधर, मेहरबानी करवाएं इधर कोई पुल बनवा दें। सीटीओ मलिक लियाकत की जानिब से मरासले में पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाने की तजवीज दे दी गई है। इब्तदाई तौर पर जिना अस्पताल के गेट, सर्विसेज अस्पताल के सामने और PIC के गेट के सामने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाए जाएंगे ताकि हादसात पर काबू पाया जाए और शहरियों को सड़क अबूर करने में सहूलियात दी जाएं। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के साथ अली साही, सिटी 42। तालीमी इदारों में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जानिब अहम कदम। शहर के 100 सरकारी स्कूलों में 624 गार्ड्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई। लाहौर समेत पंजाब के 50,000 से जायद सरकारी स्कूलों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के लिए पंजाब हुकूमत ने 4,120 गार्ड की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 4,120 गार्ड भर्ती किए जाएंगे। महकमा खजाना पंजाब ने गार्ड्स की भर्ती पर मंजूरी देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर शहर के 1100 सरकारी स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए 620 सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर लाहौर समेत सूबा भर के A कैटेगरी और B कैटेगरी के स्कूलों में गार्ड भर्ती होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने गार्ड्स की भर्ती और तनख्वाहों की मद में आने वाले अखराजात स्कूल एजुकेशन की जिलाई अथॉरिटियों को खुद उठाने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। सरकारी कॉलेजेस में अब गैर मुस्लिम असातिज़ा इस्लामियात पढ़ाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन के करता धरताओं के अनोखे तजर्बे। मखसूस हाली असामियों पर भर्तियों के लिए गैर मुस्लिमों का 5% कोटा। अहले इल्म व आगाही उंगलियां दांतों में लेकर बैठ गए। महकमा हायर एजुकेशन ने इस्लामियात के लिए लेक्चरर भर्तियों का 5% कोटा अकलियतों को दे दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में इस्लामियात के मजमून के लिए 104 मर्द और 142 खवातीन असातिज़ा भर्ती की जाएंगी। ताहम महकमा ने इस्लामियात के मजमून के लिए अकलियतों का कोटा मुख्तस कर दिया है। इस दिमन में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को असातिज़ा की भर्तियों के लिए फहरिस्त भिजवाई गई है। इस फहरिस्त में भी इस्लामियात के लिए अकलियतों के कोटे का जिक्र मौजूद है। महकमा के इस फैसले पर कॉलेज असातिज़ा में तशवीश की लहर पैदा हुई है। एक तरफ कॉलेजों से फलसफे का मजमून खत्म करने का मंसूबा बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ असातिज़ा की भर्ती के लिए एक भी सीट फलसफा के मजमून के लिए मुख्तस नहीं की गई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर तफसीलात जारी कर दी हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने इस मामले पर ताहाल कोई वजाहत जारी नहीं की। नाअहलों की भर्तियां, हर काम का बेड़ा गर्क। तालीमी निसाब छप गया, करोड़ों खर्च हो गए। मुफ्त किताबों की तकसीम, अमले की गफलत की नजर। हजारों कुतब तलबा को मिलने की बजाय गोदामों में पड़ी सड़ गईं। गरीब तलबा बाजार से महंगा निसाब खरीदने पर मजबूर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की लापरवाही से नॉन फॉर्मल स्कूलों के लिए रखी गई किताबें खराब होने लगी हैं। असातिज़ा का कहना है कि किताबों पर हुकूमत के लाखों रुपए खर्च हुए। अथॉरिटी के दफ्तर में 2 साल से पड़ी किताबें मलबे का ढेर बन गई हैं। असातिज़ा ने कहा कि सारा साल बच्चे मुफ्त किताबों के लिए तरसते हैं और बिलाहर बाजार से खरीद लेते हैं, जबकि DEO लिटरेसी का कहना है कि किताबें नॉन फॉर्मल स्कूलों के बच्चों के लिए हैं और नॉन फॉर्मल स्कूलों में बच्चों के दाखिले पूरा साल होते हैं। पहले सड़कें तोड़ो फिर बनाओ, अवाम का पैसा है भाई, बेदरे खर्च करो। ऑरेंज ट्रेन के अतराफ सड़कों की बहाली, LDA को मजीद 15 अरब दरकार। महकमा खजाना ने इजाफी फंड्स के इजरा का फैसला सूबाई काबीना के सपुर्द कर दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में तरामीम के बाद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 15 अरब रुपए के इजाफी फंड्स के लिए मुरासला महकमा खजाना पंजाब को अरसाल कर दिया है, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने इजाफी फंड्स के इजरा के लिए मामला सूबाई काबीना के सुपुर्द कर दिया है। ऑरेंज ट्रेन के अतराफ में सड़कों की बहाली और सीवरेज के निजाम की बेहतरी के लिए मंसूबे में कुछ तरामीम की गई, जिसके लिए अलहदा से प्लानिंग कमीशन तैयार किया गया है। इजाफी फंड के हसूल के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुकूमत से मजीद फंड के इजरा की इस्तदा की है, जिस पर महकमा खजाना ने इजाफी फंड के इजरा को सूबाई काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। साबिक दौरे हुकूमत में तवानाई बहरान पर काबू पाने का भोंडा तरीका नाकाम हो गया। एनर्जी सेवर देने के मंसूबे पर अरबों रुपए जाया। हर सारिफ को 2-2 एनर्जी सेवर मिलना थे। रिश्तेदारों ने खूब फायदा उठाया। 80% सब डिविजन में सारिफीन एनर्जी सेवर मिल ही न सके। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट लेस्को ने सब डिवीजन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। लेस्को की नाहिली, साबिक दौरे हुकूमत में 4 अरब रुपए मालियत के 44 लाख से जायद एनर्जी सेवर सारिफीन में तकसीम ना हो सके।
चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट ने एनर्जी सेवर्स तकसीम करने का रिकॉर्ड मुरतब ना करने का नोटिस लेते हुए महकमाना कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का आतंक आमेज रवैया। चंद माह में 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड मूसा, मेजर रिटायर्ड आमिर हफीज, स्टाफ ऑफिसर टू हमजा शहबाज राना फरहान, ड्राइवर शौकत ने भी मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट को खैर बात कह दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के हतक आमेज रवैये से जहां मुस्लिम लीग नून से अलहदा हो जाने वाले सैयद ज़ईम हुसैन कादरी और चौधरी वसीम कादर ने पार्टी को खैर बात कह दिया, वहीं उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर और ड्राइवर तक ने मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन छोड़ दिया। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड मूसा और मेजर रिटायर्ड आमिर हफीज ने भी पार्टी सेक्रेटेरिएट से किनारा कशी इख्तियार कर ली। हमजा शहबाज के साथ बतौर पर्सनल स्टाफ 6 साल काम करने वाले राना फरहान ने भी हतक आमेज रवैये के बायस इस्तीफा दे दिया, जबकि गाड़ी साफ न होने पर जब ड्राइवर शौकत को डांटा गया तो वो भी इस्तीफा देकर वापस जेहलम चला गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के तौहीन आमेज रवैये के बायस उनका स्टाफ ज्यादा देर उनके साथ काम नहीं करता। कैमरा टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। चाइल्ड लेबर खत्म ना हुई, 5.5 अरब का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया, काम कोई किया नहीं, नाहलों ने 87 करोड़ उड़ा दिए। वजीर मेहनत अंसर मजीद ने थर्ड पार्टी ऑडिट का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर मेहनत व इंसानी वसाइल अंसर खान ने सेक्रेटरी लेबर को थर्ड पार्टी ऑडिट के हवाले से इकदाम करने की हिदायत की है। 2015 में मंसूबा 5.5 अरब के बजट से शुरू हुआ। गुज़िश्ता 3 सालों में चाइल्ड लेबर खात्मे के लिए कोई खातिरख्वाह काम नहीं हो सका, मगर 87 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हो गई। प्रोग्राम के तहत टायर शॉप्स, होटल और पेट्रोल पंप समेत दीगर जगहों से चाइल्ड लेबर का खात्मा किया जाना था। प्रोग्राम की तहकीकात नैब लाहौर में भी जारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लोहारी में 9 साल आयशा का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल का मामला, पुलिस ने जेर हिरासत मुल्जिमान का DNA टेस्ट कराने के लिए सैंपल भेज दिया। बच्ची के वालिद ने मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। फखर इमाम की रिपोर्ट। 9 साला बच्ची आयशा से मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल के मामले पर पुलिस ने बच्ची के मामू समेत जेर हिरासत अफराद का DNA टेस्ट कराने का सैंपल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक अहले खाना की जानिब से वाक़े को हादसे का रंग देने की कोशिश की गई। DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर तफ्तीश और मजीद कार्रवाई की जाएगी। कसूर की ज़ैनब के वालिद ताज़ियत के लिए लाहौर के इलाके लोहारी पहुँच गए। हाजी अमीन ने आयशा के वालिद तारिक जमील से मुलाकात की और हर प्लेटफॉर्म पर मदद की यकीन दहानी कराई। मकतूला के वालिद जमील ने जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। जैसे हमें ज़ैनब बेटी की तरह इंसाफ मिला है, इस तरह इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब से अपील करेंगे हम, और मौजूदा हुकूमत से, इमरान खान साहब से, सदर पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि इनको भी इनकी बेटी के सिलसिले में इंसाफ दिलाया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहता हूँ। मुझे उसके जो कातिल हैं वो चाहिए। मैं अपील करता हूँ सब निगरान हुकूमत वालों से कि मुझे ना अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं, वो कातिल चाहिए मुझे। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद कार्रवाई DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। कैमरामैन राना अजहर के साथ सैयद फखर इमाम, सिटी 42। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में तरमीम का बिल पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया। कम उम्र की शादी कराने वालों को कैद बा मुशक्कत करने की सिफारिश कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से तरमीमी बिल जमा कराया गया, जिसमें कहा गया कि बिल के सेक्शन 2 में चाइल्ड की तारीफ में 18 साल से कम उम्र के फर्द, बच्चा या बच्ची को चाइल्ड तस्वुर करने की तरमीम दी गई है। मौजूदा कानून में 18 साल से कम उम्र बच्चा और 16 साल से कम उम्र बच्ची को चाइल्ड तस्वुर किया जाता है। चाइल्ड मैरिज एक्ट में तरमीम करके लड़कियों की शादी की कम से कम उम्र 16 साल से बढ़ाकर 18 साल मुकर्रर की जाए। बिल में तजवीज़ किया गया है कि सेक्शन 4, 5 और 6 में कम उम्री की शादी कराने वाले मददगार, वालिदैन और गार्डियन की आम सजा को कैद बा मुशक्कत में तब्दील किया जाए। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को शाही किला और गिरदोपेश पे सयाहत को मजीद फरोग देने और नाइट टूरिज्म को तरवीज के लिए मजीद इकदाम करने की हिदायत कर दी है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी का इजलास गुलबर्ग ऑफिस में हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर सैफ अंजुम, कमिश्नर मुजतबा बराचा, डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद, डायरेक्टर जनरल अथॉरिटी कामरान लशारी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कामरान लशारी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आलमी इदारों और माहरीन की खिदमात के जरिए वर्ल्ड सिटी की हालत बदल गई है। मार्च तक अंदरूनी शहर के तमाम अहम मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने हदायत जारी की कि अंदरूनी शहर सरकारी अरादी पर 100% कब्जे खत्म किए जाएं।
تحفظات کا خاتمہ خود شہریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ انہوں نے شہریوں میں تاریخی مقامات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے سمیت ملتان، بھیرا اور دیگر شہروں کے لیے بھی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت کی۔ آگے بڑھیں گے، اب آپ کو بتائیں کہ کیمبرج مدرسۃ البنات میں رنگا رنگ سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات کی کھیلوں، ٹیبلوز، ایروبکس میں شاندار پرفارمنس نے حاضرین کے دل موہ لیے۔ وقار گھمن کی رپورٹ۔ کیمبرج مدرسۃ البنات چبرجی کے سالانہ رنگا رنگ سپورٹس گالا میں منفرد اور دیدہ زیب ڈریسز میں ملبوس طالبات کی پرفارمنسز نے سپورٹس گالا کو چار چاند لگا دیے۔ ٹیچرز کے میوزیکل چیئر مقابلے نے ماحول کو دلچسپ بنائے رکھا۔ خوشی سے نہال طالبات کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام سال بعد نہیں بلکہ ہر 6 ماہ بعد ہونے چاہیے۔ اسکول لیول پہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ ہر لیول پہ ہونا چاہیے، کالج میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی بہت اچھی اسپرٹ ہے۔ اسپورٹس ڈے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز بچوں میں زیادہ تر روچی رہتی ہیں، تو اسپورٹس ڈے ضرور ہونی چاہیے۔ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، ہم ریلے ریس میں، بینڈ ڈسپلے میں، مارچ پاسٹ میں، ٹیبلو میں حصہ لیا اور ہم جیتے بھی ہیں۔ اسکول کی سابق طالبہ ڈاکٹر نتاشا عثمان مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کرنے پر انتہائی خوش دکھائی دیں، جبکہ پرنسپل مس رخشندہ اور ہیڈ مسٹریس راہیلہ انور نے طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ It's a big honor for me. اسی گراؤنڈ میں کھیل کے، یوں چیئر کر کے، اور بہت سی ریسز میں خود بھی بہت ون کرتی تھی، اور آج ان بچوں کو دیکھ کے میں سوچتی ہوں کہ اتنا انتھوزیازم جتنا ان بچوں میں ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسکول کی ایفرٹ ہے۔ طالبات کا انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ ان کے اساتذہ کی شب و روز محنت کا منہ بولتا ثبوت ثابت ہوا۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ہمراہ وقار گھمن، سٹی 42۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بیوروکریسی کا پولیس کو ماتحت کرنے کے لیے ایک اور حملہ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے آر پی او سے ماہانہ کرائم رپورٹ لینا شروع کر دی۔ بیوروکریسی ہمیشہ سے پولیس کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیتی رہی ہے، لیکن بیوروکریسی کا نیا کارنامہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق تمام آر پی اوز کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اپنی ماہانہ کرائم رپورٹ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو جمع کروائیں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے اس حوالے سے تمام آر پی او کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کا کہنا ہے کہ کرائم رپورٹ کی بنیاد پر آر پی او اور ڈی پی او کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ سی سی پی او بشیر احمد ناصر اور آئی جی پنجاب میں اختلافات، آئی جی کا تھانوں میں ہفتہ وار چھٹی کا حکم، جبکہ بشیر احمد ناصر نے آئی جی کے احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے۔ 1.5 ماہ قبل آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی نے تھانوں میں ہفتہ وار چھٹی کے احکامات جاری کیے تھے، جس پر صرف لاہور پولیس کی جانب سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سی سی پی او بشیر احمد ناصر نے ہفتہ وار چھٹی کا شیڈول جاری نہ کیا، جس کی وجہ سے اہلکار ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اہلکاروں اور افسروں کا کہنا تھا کہ جب آئی جی نے احکامات جاری کر دیے تو سی سی پی او کیوں شیڈول جاری نہیں کر رہے۔ ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی اور سی سی پی او بشیر احمد ناصر میں اختلافات کی بڑی وجہ ذوالفقار حمید کو سی سی پی او تعینات کرانا تھا، جس کو بعد میں بشیر احمد ناصر نے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے نوٹیفکیشن واپس کرا لیا تھا۔ آگے بڑھیں گے، اب آپ کو بتائیں کہ لاہور عجائب گھر اور لاہور کالج فار وومن کے ٹیکس معاملات کی جانچ پڑتال کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر نے 2 ود ہولڈنگ ٹیکس آڈٹ کے لیے خریداروں اور اخراجات کے ریکارڈ کی چھان بین شروع کر دی۔ ایف بی آر نے لاہور کالج فار ویمن اور لاہور عجائب گھر کا ود ہولڈنگ ٹیکس آڈٹ شروع کر دیا ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق لاہور کالج فار ویمن اور عجائب گھر کا سال 2017 کا ود ہولڈنگ ٹیکس آڈٹ شروع کر کے خریداریوں اور اخراجات کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ ایف بی آر کی ٹیم نے لاہور کالج فار ویمن اور لاہور عجائب گھر کا تمام ریکارڈ بھی حاصل کر لیا ہے۔ ایف بی آر لاہور عجائب گھر اور لاہور کالج فار ویمن کے ملازمین کو ادا کی گئی تنخواہوں کا بھی آڈٹ کرے گا۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق آڈٹ میں بے ضابطگیاں ثابت ہونے کی صورت میں انکم ٹیکس قوانین کے مطابق ٹیکس عائد کر کے ریکوری کی جائے گی۔ ایف بی آر نے کروڑوں روپے مالیت کی پراپرٹی خریدنے اور گوشوارے جمع نہ کرانے پر کامران کیانی کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ایف بی آر نے ڈی ایچ ایم اے کامران کیانی کی رہائش گاہ پر نوٹس چسپاں کر کے 3 جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ایف بی آر نے کروڑوں روپے مالیت کی پراپرٹی خریدنے اور گوشوارے جمع نہ کرانے پر کامران کیانی کی ڈیفنس میں واقع رہائش گاہ 574X پر شو کاز جاری کیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ آشیانہ اسکینڈل کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ چیئرمین نیب نے شہباز شریف کے خلاف آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکینڈل ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دورہ لاہور کے دوران دی۔
साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ रेफरेंस में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और अहद चीमा समेत 13 अफराद को रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस 1500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसको हफ्ते के रोज एहतसाब अदालत में दायर किए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ हुकूमती खजाने को 60 करोड़ का नुकसान पहुँचाने का भी इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत, नैब और तमाम मुल्ज़मान को रेफरेंस की कापियाँ पेश की जाएंगी। हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला, डिस्टेंस एजुकेशन डिग्रियों का प्रोग्राम बंद कर दिया गया। जामियात में डिस्टेंस एजुकेशन के तहत MS और MPhil की डिग्रियां बंद कर दी गईं। HEC ने फासलाती निज़ाम तालीम के तहत जारी होने वाले MS और MPhil की डिग्रियां बंद करने का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी 2018 के बाद होने वाले तमाम दाखिले मनसूख कर दिए गए हैं। HEC के मुताबिक डिस्टेंस एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम में 2018 फरवरी के बाद होने वाले दाखिले गैर कानूनी तस्वर होंगे और डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम की संदों की हायर एजुकेशन कमीशन तस्दीक नहीं करेगा। HEC की जामियात को अपनी वेबसाइट पर डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्रियां बंद करने का नोटिस लगाने की हदायत भी जारी कर दी गई है। HEC की जानिब से जारी होने वाले मुरासले के मुताबिक लॉ और टेक्नोलॉजी के अलावा दीगर तमाम डिग्रियों की तस्दीक भी नहीं की जाएगी। हायर एजुकेशन कमीशन ने वाइस चांसलर के नाम डिग्रियां बंद करने के लिए मुरासला लिख दिया। डिस्टेंस एजुकेशन डिग्रियों को बंद करने का इतलाक ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी पर नहीं होगा। गैर कानूनी ज़बा खानों की तलाश और कार्रवाइयों के लिए फूड अथॉरिटी और लाइफ स्टॉक ने बल्दिया उज़्मा से राब्ते का फैसला कर लिया। फैसले के मुताबिक बल्दिया उज़्मा को तलकीन की जाएगी कि वो अपने जोन एनफोर्समेंट टीमों को मुतहर्रिक करें और इलाके में मज़बा खानों को चेक करें। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस के मुताबिक गैर कानूनी मज़बा खानों के खिलाफ कार्रवाइयां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की भी जिम्मेदारी है। PFA मज़बा खानों को हफ्तावार चेक करती है, मगर जामे मनसूबा बंदी से ही मुज़र सेहत गोश्त की तैयारी और फरोख्त रोकी जा सकती है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का जोहर टाउन शमसानी रोड पर ऑपरेशन। LDA ने मुतादिद वर्कशॉप्स मिसमार करके सरकारी प्लॉट्स वागुजार करवा लिए। तफसीलात जानते हैं दुरे नायाब की इस रिपोर्ट में। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग ने जौहर टाउन शमसानी रोड पर ऑपरेशन किया। LDA ने R1 और N ब्लॉक पर गैर कानूनी वर्कशॉप्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। सरकारी रिहायशी प्लाटों पर कायम गैर कानूनी वर्कशॉप को मिसमार कर दिया गया। प्लाटों पर कब्जे की ओवरसीज की शिकायत भी मौसूल हुई थी। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 1 खुर्रम याकूब और असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अम्मार यासिर ने अमले और पुलिस के हमरा कार्रवाई की। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट खुर्रम याकूब का कहना है कि कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर तमाम इदारे एक पेज पर हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसमें तमाम महकमों की एक तो यूनिफाइड एफर्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पुलिस और LDA मिलकर काफ़ी ऑपरेशंस कर रहे हैं। उस वजह से इस दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट जो ऑपरेशंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में हो रहे हैं। ऑपरेशन में शामिल स्टेट ऑफिसर वकार नागरा ने भारी मशीनरी से तमाम इमारतों को गिरा दिया। उनका कहना था कि सरकारी प्लाटों पर कब्जे के खिलाफ एक्शन लिया गया है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। यहाँ पे तमाम लोग जो है डिफरेंट माफिया एलिमेंट्स ने मिलकर हमारे प्लॉट्स पे कब्जा किया हुआ था और उसको हमने आज उनसे रिट्रीव करवा लिया है और फर्दर भी इंशाल्लाह जो है इतने ही प्लॉट मजीद आज हम रिट्रीव करेंगे। LDA, जिला इंतजामिया और पुलिस के एक पेज होकर एक्शन करने के मुस्बत नताइज मुरतब होंगे और माफिया से अरबों मालियत की सरकारी अराजी भी वागुजार होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ दुरा नायाब, सिटी 42। अदलिया की तारीख में पहली मरतबा साइलिन को मुकदमात की 24 घंटे में मुकदमा नकूल की ऑनलाइन फ्राहमी। लाहौर समेत 36 अजला की अदालतों में ऑनलाइन नकूल की फ्राहमी के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो गया। तफसीलात के लिए देखिए मलिक अशरफ की रिपोर्ट। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने पंजाब की जिले अदलिया के लिए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम और कॉपी एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम और लाहौर हाई कोर्ट की नई मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब जुडिशल अकेडमी में मुनक़िदा इफ्तिताही तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम अहमद खान समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से इजहार ख्याल करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक का कहना था कि इन सॉफ्टवेयर की बदौलत साइलिन के लिए मजीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। हर आदमी 1 महीने तक अपना ऑर्डर वेबसाइट पे अपने मोबाइल फोन पे देख सकता है कि आज उसके केस में क्या ऑर्डर हुआ है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक का मजीद कहना था कि टेक्नोलॉजी के जरिए 150 साल पुराने दौर से छुटकारा पाना निहायत जरूरी हो चुका है। मैं तवक्को करता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से कि वो ऐसी किसी एफर्ट को कामयाब नहीं होने देंगे। वो अपनी इस टेक्नोलॉजी की मदद से आम आदमी को, गरीब आदमी को इस सारी टेक्नोलॉजी का फैज़ पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगी। नामजद चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस मामून रशीद शेख और सेशन जज कलीम खान ने कॉपी एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम की अफादियत बारे इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसकी बदौलत सूबे भर की जिले अदलिया में साइलिन को मुसद्दिका नकल की फराहमी इंतहाई आसान बना दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास बट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42।
आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि दुबई के मारूफ ग्रुप ऑफ शॉपिंग मॉल माजिद अल फित्न ने पाकिस्तान में शॉपिंग स्टोर हाइपरस्टार का नाम तब्दील कर दिया है। कैरिफोर के नए लोगों की तकरीब रूनुमाई में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पैकेजेस मॉल में हाइपरस्टार की रीब्रांडिंग और नए लोगों की लॉन्चिंग तकरीब में कंट्री हेड कैरिफोर मिस्टर किम और एमडी पैकेजेस सैयद हैदर अली समेत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहर की अहम मुलाकातों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। आजाद कश्मीर के मसूद खान की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर भारतीय जारहियत की मजम्मत। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सालाना एमकिन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत मुल्की और बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स ने शिरकत की। जदीद मेडिकल रिसर्च पर मुश्तमिल मकालाजात पेश किए गए। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम अलजाबी ने लाहौर ईवान सनअत व तिजारत का दौरा किया और कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का कौंसल खाना बहुत जल्द लाहौर में काम शुरू कर देगा, जिससे कारोबारी बरादरी को बहुत सी सहूलियात मुयसर आएंगी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 38वें सालाना इंटरनेशनल साइंटिफिक सिंपोजियम का इनेकाद। सिंपोजियम में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से 404 अफराद में बिलासूद कर्जों की फराहमी के लिए चेक्स की तकसीम। कहते हैं कि छोटा कारोबार मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तजम्मुल हुसैन की लीगी कारकुनान से मीटिंग। उनका कहना था कि NA 128 में होने वाली मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी में मुखलिस कारकुनान को ओहदे दिलवाए जाएंगे। चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी की जानिब से इल्म अमराज खून के मौजू पर पैथोलॉजिस्ट्स के लिए 2 रोजा आगाही और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। मारूफ हेमाटोलॉजिस्ट्स ने खून के अमराज की तशखीस और इलाज पर गुफ्तगू की। अब आपको बताएं कि लाहौर स्कूल ऑफ एविएशन के ज़ेर एहतमाम एविएशन नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब में मिनिस्टर यूथ अफेयर्स पंजाब राय तैमूर खान भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानिए सईद अहमद सईद की रिपोर्ट में। लाहौर स्कूल ऑफ एविएशन के ज़रिए तमाम सालाना एविएशन प्रोजेक्ट तकरीब में तलबा की जानिब से प्रोजेक्ट पेश किए गए। डिस्प्ले में हवाबाजी से मुंसलिक दीगर प्रोफेशनल से मुतालिक तलबा ने नए आइडियाज से रोशनास कराया, जिस पर तकरीब में शरीक मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पंजाब राय तैमूर खान भी तलबा की सलाहियतों की दाद दिए बगैर न रह सके। तलबा ने तकरीब में शरीक मेहमानों को अपने अपने डिस्प्ले से मुतालिक आगाह किया। तलबा का इस मौके पर कहना था कि स्कूल इंतजामिया की रहनुमाई से प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचे हैं। एविएशन मैनेजमेंट है तो हम लोग को ये सिखाते हैं कि हम लोग ने किस तरह मैनेज करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम लोग को जहाज से रिलेटेड सारा पढ़ा के हम लोग को मैनेजमेंट सिखा के हम लोग को वर्किंग प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को उसी वक्त भेज देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली पेट्रोटिज्म पे 1965 के वॉर पे MM आलम ने जो इंडियन हॉकर्स गिराए थे वो 5 हॉकर्स बनाए हम लोगों ने और MM आलम के एयरक्राफ्ट को शो करवाया कैसे वो गिराते हैं हर डिफरेंट प्लेसेस पे। लेकिन बच्चों ने मॉडल्स ऐसे पेश किए हैं कि फ्यूज़लेज जो है वो नीचे उतर जाएगा, वो पैराशूट से नीचे आ जाएगा और लोगों बहुत सी कीमती जानें बच जाएंगी। एविएशन प्रोजेक्ट तकरीब में महान एयर स्टेशन मैनेजर मोनिस नकवी, कंट्री मैनेजर श्रीलंकन एयर समन रतानके, साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत फैकल्टी मेंबरान, यूनिवर्सिटी असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अबू बकर शान के हमराज सईद अहमद सईद, सिटी 42। खेल के मैदान से आपको बताएं कि नेशनल हॉकी स्टेडियम में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तलबा और अफगानिस्तान से आए खिलाड़ियों के माबैन हॉकी मैच खेला गया। दोनों टीमों ने जमकर खेला। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी हो तो खिलाड़ियों का जज्बा भी काबिले दीद होता है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तलबा और अफगानिस्तान की टीम के दरमियान हुआ तगड़ा मुकाबला। हॉकी के सनसनीखेज मैच को देखकर अज़बकिस्तान के सफीर बखवेर अहमेदव मेहमान खुसूसी बनकर आए। दोनों टीमें जब मैदान में उतरी तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। जहां मेहमान टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो वहीं मेजबान टीम ने भी खूब डटकर दिफा किया। मैच के आगाज पर किए जाने वाले गोल से लगता था कि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पूरा मैच ही अपने नाम कर लेगा, मगर अफगानी टीम ने जल्द ही 2 गोल किए और फिर तीसरे गोल पर मुकर्ररा वक्त के इख्तिताम पर जीत का सेहरा अपने नाम कर डाला। जीतने वाली टीम को यूनिक की तरफ से इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन यावर भट्टी के हमरा अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। और कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने मेसन रोड पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने मुकाबले में 1 डाकू हलाक जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जवानों की बरवक्त कार्रवाई से मुतासरा खानदान बड़े नुकसान से बच गया।
थाना सिवन लाइन का इलाका मेसन रोड उस वक्त फायरिंग से गूंज उठा जब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। 4 डाकू इम्तियाज सेठी नामी शख्स के घर घुसे ही थे कि 15 की इतला पर पुलिस और डॉल्फिन फोर्स के एहलकार बर वक्त पहुंच गए और डाकुओं का गिरद घेरा तंग कर दिया। पुलिस को देखकर डाकुओं ने भागने की कोशिश की। इस दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त मुस्तफा के नाम से हुई है। 3 घंटे फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने दीगर 3 डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। असले समेत गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनमें से एक डाकू जो है वो ज़ख्मी है। अभी ये इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि उसने अपने आप को क्या खुद उसने फायर मारा है या क्या उसके साथी ने मारा है। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं को नामालूम मकाम पर मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि हलाक होने वाले डाकू की लाश को मुर्दाखाने भिजवा दिया गया। कैमरामैन आगा ज़ैन के हमरा हसन हालत, सिटी 42। साबिक दौरे हुकूमत के शुरू किए गए मंसूबे हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। शहर समेत सूबे भर के DHQ और THQ अस्पताल की बहाली के लिए 1.5 अरब रुपए के इजाफी फंड्स के इजरा पर हुकूमत ने महकमा सेहत की समरी मुस्तरद कर दी। साबिक दौरे हुकूमत में महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने DHQ और THQ अस्पताल की बहाली का प्लान शुरू किया था, जिसके लिए करोड़ों रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। गुज़श्ता रोज ID अथॉरिटी ने अस्पतालों की बहाली के मंसूबे पर फंड्स की अदम दस्तयाबी पर काम रोक दिया, जिस पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जारी प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए अवान वज़ीर आला को मुरासला लिख दिया, जिसके मुताबिक जारी मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 1.5 अरब रुपए जारी किए जाएं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में फंड्स की किल्लत के बायस मंसूबे पर इजाफी फंड्स के इजरा करने से इनकार कर दिया है। शहर में मियां मुंशी अस्पताल की तौसीक का काम भी इल्तवा का शिकार है, जबकि पंजाब भर मुख्तलिफ अजला के 4 अस्पताल शामिल हैं। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। आज़ा की पैवंदकारी से मुतालिक तमाम मालूमात और रहनुमाई वेबसाइट पर मौजूद होगी। शहरियों के सवालात के ऑनलाइन जवाबात भी दिए जाएंगे। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानिब से ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। वेबसाइट पर आज़ा की पैवंदकारी से मुतल्लिक तमाम मालूमात फराहम की गई हैं। वेबसाइट पर ट्रांसप्लांट के लिए अथॉरिटी के रजिस्टर्ड सेंटर की तफसीलात समेत पैवंदकारी के लिए दस्तयाब सहूलतों की मालूमात भी दी गई हैं। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की वेबसाइट पर शहरियों के सवालात के ऑनलाइन जवाबात दिए जाएंगे और ट्रांसप्लांट की सहूलत फराहम करने की ख्वाह इलाजगाहों की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो सकेगी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के DG प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की जानिब से डेप्टी डायरेक्टर अदनान भट्टी की सरबराही में पब्लिक रिलेशन सेल भी कायम कर दिया गया है, जो शहरियों को तमाम मालूमात की फराहमी के साथ उनकी रहनुमाई भी करेगा। लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में मॉनिटरिंग टीमों के विजिट के दौरान गैर हाजिरी पर दर्जनों असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रायविंड से SST शवाना मुमताज, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल अवान टाउन से SSC बुशरा खान, गवर्नमेंट जूनियर सेंटर मॉडल स्कूल रेडिगन रोड से SSC अब्दुल लतीफ और गवर्नमेंट हाई स्कूल चुंगी अमर सद्दू से टीचर खादिम हुसैन को गैर हाजिरी पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल फतेहगढ़ से मिस नाइला मुख्तार और शाजिया अकबर को, गवर्नमेंट मकबूल आम स्कूल के उस्ताद मोहम्मद यासीन को, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शादीवाल माजा से वजीह जावेद को और गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल संत नगर के टीचर मोहम्मद मंजूर को शोकाज जारी किया गया है। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान रोड की मिस आबदा रशीद, गवर्नमेंट इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल मुस्तफाबाद के जूनियर क्लर्क मोहम्मद अयाज और करबाट स्कूल के क्लर्क मोहम्मद अरशद को भी शोकाज जारी किया गया है। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल गुलशन रावी की मिस तहमीना हमीद और रायविंड की मिस नसीम अख्तर को भी गैर हाजिरी पर शोकाज जारी किया गया। मज़कूरा स्टाफ के खिलाफ गैर हाजिरी पर एजुकेशन अथॉरिटी ने बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पंजाब टीचर्स यूनियन के वफ्द की सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज से मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर तालीम ने रवां साल तबादलों में ख़वातीन असातिज़ा को रिलीफ देने के बजाय आइंदा साल मौसम गर्मा की तातीलात में होने वाले तबादलों में रिलीफ देने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स हाउस में पंजाब टीचर्स यूनियन की वफ्द की सूबाई वजीर तालीम मुराद राज से मुलाकात। वफ्द की क़यादत PTU के जनरल सेक्रेटरी वहीद मुराद यूसुफी ने की। मुलाकात में यूनियन काउंसिल के इजाफी नंबर लेकर भर्ती होने वाले असातिज़ा के तबादलों पर बात की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जफर इकबाल भी मौजूद थे। मुलाकात में वजीर तालीम मुराद राज ने तबादलों की मुतमन्नी टीचर्स को फौरी रिलीफ देने से माजरत कर ली। मुराद राज का कहना था कि आइंदा साल मौसम गर्मा की तातीलात में होने वाले तबादलों में खवातीन असातिज़ा को रिलीफ देंगे। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन वहीद मुराद यूसुफी का कहना था कि रिलीफ न मिलने की वजह से मुतासरा खवातीन असातिज़ा सरापा चेयरमैन यूनियन काउंसिल 182 राशिद करामत भट्ट उम्रे की अदायगी के बाद लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोस्तों ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 182 जलो मोड़ राशिद करामत भट्ट उम्रा की अदायगी के बाद लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोस्तों और फैमिली मेम्बरान ने इस्तकबाल किया। शहर में होने वाली क्रिसमस की तकरीबात का हवाल जानिए इस रिपोर्ट में।
सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने क्रिसमस के पेश नजर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को लाहौर समेत पंजाब भर में क्रिसमस बाजार लगाने की हिदायत जारी कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड एजाज अहमद ने दरबार हॉल सिविल सेक्रेटरीट में क्रिसमस का केक काटा, मसीही सरकारी मुलाजमीन को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। क्रिसमस की मुनासबत से योहनाबाद में तकरीब का इनेकाद। फुल हार्वेस्ट मिनिस्ट्री की जानिब से 300 पाउंड का केक काटा गया, जबकि 200 अफराद में राशन तकसीम किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में मसीही स्टाफ के साथ इजहार यकजहती के लिए क्रिसमस तकरीब का इनेकाद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने दीगर जजेस के हमरा क्रिसमस केक काटा। बिलाक में पंजाब यूथ काउंसिल के ज़रिए एहतमाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म के यौम पैदाइश और क्रिसमस के हवाले से तकरीब। फयाजुल हसन चौहान की खुसूसी शिरकत। टेफ्टा सेक्रेटरीट में क्रिसमस डे के हवाले से तकरीब। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टेफ्टा अख्तर अब्बास भरवाना ने क्रिसमस केक काटा और मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। LWMC के ज़रिए एहतमाम क्रिसमस के हवाले से केक काटने की तकरीब का एहतमाम। मसीही मुलाजमीन के हमरा 10 पाउंड का क्रिसमस केक काटा गया। अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। पैरागॉन हाउसिंग केस में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक का राहदारी रिमांड मिलने पर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पाक अरब हाउसिंग स्कैंडल में मुलविस डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मेजर रिटायर्ड गुलाम मुर्तजा के जिस्मानी रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीक कर दी गई। एहतसाब अदालत में साबिक डीजी आहत चीमा के खिलाफ LDA सिटी में अरबों रुपए के करप्शन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत ने आहत चीमा को मजीद 13 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गुलबहार कॉलोनी में बिजली की हाई टेंशन तार की जद में आकर 3 बहनें झुलस गईं। 22 साल फर्द बीबी जाँ बहक जबकि 2 शदीद झुलस गईं। लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी से निकाले जाने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। महकमा लेबर के अफसरान के बैरून ममालिक सैर सपाटों पर पाबंदी आयद। सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ने अफसरान के बिला इजाजत दौरों पर पाबंदी लगा दी। 2 बच्चों की हवालगी के लिए केस की सेशन अदालत में समाअत। 2 बच्चे बाप से बाजियाब करके मां के हवाले कर दिए। सेशन अदालत ने कत्ल के मुकदमे में मुलविस मुलजिम को 25 साल कैद और 2 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। एहतसाब अदालत में गाड़ियों के नाम पर करोड़ों रुपए के शफीक हॉली फ्रॉड केस की समाअत। अदालत ने गवाहान के बयानात कलमबंद न होने के बायस केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियों का मामला। एंटी करप्शन ने महकमा कोऑपरेटिव की सर्कल रजिस्ट्रार माह मुनीर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार मोहम्मद मोहसिन अली और इंस्पेक्टर हाउसिंग इमरान सफदर को गिरफ्तार कर लिया। SP अली रजा की जौहर टाउन के इलाके में कब्जा माफिया के मुतासरीन के लिए खुली कचहरी। कहते हैं कि वागजार करवाई हुई जमीन जल्द असल हकदारों के हवाले की जाएगी। सरगोधा यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस का लाहौर कैंपस के तलबा से इम्तहानात की मद में डबल फीस लेने का दबाव। तलबा ने क्लासेस का बायकॉट करके गैर कानूनी तौर पर इजाफी फीस लेने पर इंतजामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। लाहौर की टाउनशिप मार्केट में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कीमतों में इजाफे के बायस परेशान दिखाई दिए। UET में नैब के इश्तराक से नैब कवानीन के हवाले से आगाही वर्कशॉप का इनेकाद। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कहना है कि नैब इंजीनियरिंग इदारों की तजावीज भी करप्शन का हिस्सा बनाए। पाक तुर्क स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा और उनके वालिदैन ने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पाक तुर्क स्कूल मारिफ फाउंडेशन के हवाले करने के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। चेयरमैन UC 182 राशिद करामत बट उम्रे की अदायगी के बाद लाहौर पहुंच गए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोस्तों ने इस्तकबाल किया। जनरल अस्पताल के शुबाए नेफ्रोलॉजी के ज़रिए एहतमाम नमकियात के गैर मतवाजन होने से इंसानी सेहत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात पर सेमिनार। साबिक MNA अली भट्टी की नमाज जनाजा आबाई गाँव शाम के भटिया में अदा। सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत। कैंप जेल में पंजाब भर की मुख्तलिफ जेलों में तैनात वार्डर्स और हेड वार्डर्स की पासिंग आउट परेड हुई। IG जेल खाना जात का कहना है कि जेलों में तैनात एहलकार इंतहाई हसास जिम्मेदारी ऐसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर में सूबे भर की जेलों में तैनात वार्डर से हेड वार्डर और हेड वार्डर से चीफ वार्डर के ओहदों पर तरक्की पाने वाले 116 एहलकारों की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। तरक्की हासिल करने वाले एहलकारों ने मेहमान खुसूसी IG जेल खाना जात को सलामी भी पेश की। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना था कि जेलों में तैनात एहलकार इंतहाई हसास ड्यूटी ऐसा तरीके से अंजाम दे रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट कोई आम डिपार्टमेंट नहीं है, इंतहाई सेंसिटिव डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हर तरह के जराइम वाले जो उनसे लोग हैं हम उनको रखते हैं। तो इस डिपार्टमेंट की बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं और बड़ी खिदमत है मुआशरे के लिए कि अगर ये लोग दिन रात जागते हैं तो मुआशरा दिन रात सोता है।
पास आउट होने वाले एहलकारों ने अपने फराइज ईमानदारी से अंजाम देने के आज़म का इजहार किया। सूबे की मुख्तलिफ जेलों में तैनात एहलकारों में 89 वार्डर्स को हेड वार्डर्स और 27 हेड वार्डर्स को चीफ वार्डर्स के ओहदों पर तरक्की दी गई है। कैमरा टीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। पाकिस्तान सुपर लीग की छठी टीम अली खान तरीन ने $53 लाख सालाना में खरीद ली। PSL की छठी टीम फ्रेंचाइज की फरोख्त के लिए बिडिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुई। टीम की फाइनल बिडिंग के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन के साहबजादे अली तरीन की मुल्तान कंसोर्शियम और जनूबी अफ्रीका की कंसोर्शियम कंट्री वाइड ने क्वालिफाई किया था। ताहम अली तरीन ने $53 लाख फी साल की कामयाब बोली देकर 7 साल के लिए छठी टीम के मालकाना हकूक हासिल कर लिए। उनका कहना था कि कानून ने इजाजत दी तो टीम का नाम मुल्तान सुल्तान ही रखा जाएगा। अली तरीन का कहना था कि जनूबी पंजाब से नया टैलेंट सामने लाएंगे। PCB से दरख्वास्त है कि PSL के लिए ऐसे टूर्नामेंट का भी आगाज किया जाए जो पाकिस्तान में खेला जाए और इसमें सिर्फ मकामी खिलाड़ी शरीक हों। जब तक सब मैचेस पाकिस्तान में नहीं आते, एक यूथ टूर्नामेंट और एक वुमेन्स टूर्नामेंट नहीं आता, तब तो ये बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ पैशन बिलीफ के क्रिकेट is what unites पाकिस्तान। अली तरीन के मुकाबले जनूबी अफ्रीकी कंसोर्शियम कंट्री वाइड के नुमाइंदे अहमद चाय ने अली तरीन को कामयाब बोली पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि मौका मिला तो अगली बार फिर किस्मत आजमाई करेंगे। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।